मैम आप प्लीज़ म्यूट रखिए थोड़ा सा, बहुत इको हो रहा है. So good morning once again, ladies and gentlemen. I, Dr. Shilpi Chauhan, Secretary of Uthan Foundation, Delhi, and today we are here to celebrate Motherhood Day, a one-day national awareness program, and organized by Uthan Foundation, Delhi, and ASCC Hospital, Jaipur, in collaboration with the Center of Excellence for Women Empowerment, Department of Extension, Communication and Management, Institute of Home Science, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. Now I would like to request Dr. Anupma Gupta ji to start the program. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, I am audible? Yes, you are audible, ma'am. सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। मैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता हमारे कार्यक्रम में आज राष्ट्रीय मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता कार्यक्रम मातृत्व से लेकर बच्चे तक और उससे आगे गृह विज्ञान संस्था के विस्तार संचार और प्रबंधन विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एवं उत्थान फाउंडेशन दिल्ली एवं मेटरनल हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मैं अपने मुख्य संरक्षक माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशु रानी मैडम का स्वागत करती हूँ एवं मिस्टर उत्कर्ष सिंह संस्थापक एवं अध्यक्ष उत्थान फाउंडेशन दिल्ली का भी स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का भी अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर अर्चना गद्दर मैम, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस मनाली आगरा, डॉक्टर शिल्पी चौहान मैम, संस्थापक एवं अध्यक्ष सक्षम सोसाइटी जयपुर राजस्थान एवं ये सेक्रेटरी उत्थान फाउंडेशन दिल्ली के भी है, और डॉक्टर अनुपम जैन, एसोसिएट प्रोफेसर अमेठी बिजनेस स्कूल अमेठी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान का भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे ये कार्यक्रम तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने स्पेशल जो हमारे स्पीकर्स हैं अगर उनका मैं अभिवादन ना करूं, जिनके बिना ये कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो सकता। डॉक्टर रिचा वैष्णव, गायनेकोलॉजिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट, मेटरनल हॉस्पिटल जयपुर, मैम आपका मोस्ट वेलकम। और मिसेस श्वेता दुबे मैम, एसोसिएट प्रोफेसर ह्यूमन डेवलपमेंट होम साइंस डिपार्टमेंट वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। मैम आप सबका मेरी तरफ से और हमारे पूरे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम लोग मदरहुड के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो मैम ओवर टू यू शिल्पी मैम। Thank you so much, ma'am Anupma ji, for warm welcome. Now I would like to request to Utkarsh Kumar sir to share something about the program. So please, over to you. Thank you so much, ma'am. I hope I am audible. Yes, you are. So thank you for inviting me, ma'am. So before we proceed ahead, I would give you a brief about what Uthan Foundation is and what Uthan Foundation does. So Uthan Foundation is a trust which has been registered in Delhi NCR, and we are into academic I would like to say we are into increasing the academic excellence of the institutions. मैम आप We लेफ्ट हो गए conduct conferences, we do मैम मीटिंग में नहीं है आप publications, faculty development programs, awareness programs, employability enhancement, research and लेफ्ट हो development, गया लेफ्ट हो गया है मैम लेफ्ट हो गया women empowerment, forestation, healthcare, so many things we are in. So not going too आई much डोंट नो deep मैम in this मुझे यहाँ aspect, से I तो would लेफ्ट आ रहा है like to congratulate all the mothers for अच्छा ठीक है celebrating ठीक the है motherhood ठीक day today. The importance of motherhood day is because it is being celebrated for what we call as increasing awareness about the health and safety of the mothers, especially for safe what we can say pregnancies, especially after the ages of 35. So if we see in today's society, people or women are slowly moving towards career progression and they are conceiving late, and
by the time they start conceiving or plan to have a baby, they are already 30 plus, or in many of the cases they are already 35 plus, which increases to complexities during pregnancy. So in order to advise the women regarding the complexities of the pregnancy and to ensure a safe motherhood, International Motherhood Day is being celebrated. So I would like to thank, because I'm not an expert here, but I would like to thank Professor Ashuran, Vice Chancellor, Bhimrao Ambedkar University, Agra, Dr. Shilpi Chauhan, Founder and President, Saksham Society, Jaipur, and Secretary of Uthan Foundation, Professor Achla Gakkar ma'am, Director, Institute of Home Science, Kandari, Agra, Dr. Anupam Jain, Associate Professor, MIT Business School, Jaipur, Dr. Richa Vaishnav, gynecologist at Eternal Hospital, and Mrs. Shweta Dubey ma'am, Associate Professor, Human Development, Faculty of Home Sciences, Banasthali Vidya. So I would like to invite you all of the experts, and I would like to thank all the experts for taking your time together and encouraging as well as enhancing the knowledge of all the mothers involved. So over to you, Shilpi Chauhan ma'am. Thank you so much, sir. So now I would like to invite our first speaker, Dr. Rita Vaishnav ma'am, to share the tips प्री एंड प्रो प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद की कुछ टिप्स मैम को मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें। एंड मैम प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप यदि हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवर टू यू मैम। मैम प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए मैम, म्यूट है। Hello everyone. Yes. Thanks for inviting me. It's a great pleasure to be part of such a large group and sharing my knowledge. तो आज जैसा कि मुझे बताया गया कि प्री प्रेगनेंसी में जो मदर है, प्री प्रेगनेंसी में जो लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं, वो अपना कैसे ध्यान रख सकती हैं कि उनकी मदरहुड की जर्नी अच्छी रहे, और डिलीवरी के बाद वो अपना कैसे ध्यान रख सकती हैं कि वो फिर से बैक टू नॉर्मल आ सके। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें एक बार और अपना एक रूटीन चेकअप कराएं। उस रूटीन चेकअप में आपका थायराइड टेस्ट, आपका हीमोग्लोबिन लेवल, आपका शुगर, बॉडी वेट, ये सारा रूटीनली चेक होता है। एक रुबेला IgG का भी टेस्ट होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि आप इस इन्फेक्शन के लिए इम्यून है कि नहीं। अगर आप इम्यून हैं तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, अगर आप इम्यून नहीं है तो आप वैक्सीन भी रिसीव कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट जो बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में वो है फॉलिक एसिड, जो आपको 3 मंथ प्रायर टू प्लानिंग प्रेगनेंसी शुरू करनी चाहिए। तो बेसिक टेस्ट जिसमें थायराइड, शुगर, CBC है ना, अगर आपको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होता है तो यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। और बेसिक फूड सप्लीमेंट फॉलिक एसिड जो मल्टीविटामिन आपको है ना, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आप कैल्शियम भी ले सकते हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले बिल्कुल फिट रहे। अगर आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस हैं, तो आप एक अपना वेट रिड्यूस करने के लिए प्लान ले सकते हैं, डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। वंस यू कंसीव, जो पहले एक मिथ चला रहा था कि भाई प्रेगनेंसी अगर होती है तो 3 महीने तक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो अब चेंज हो गया है। आप जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं वैसे ही आप अपने डॉक्टर से मिले, जिससे आपके जो भी टेस्ट हैं वो जल्द से जल्द हो। किसी को थायराइड का भी टेस्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम रहती है जिससे उसके बच्चे का भी असर हो सकता है। किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो आपको आयरन की टैबलेट जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनिशियली टेस्ट होते हैं। फर्स्ट सोनोग्राफी होती है जो 7 से 8 घंटे में होती है, जिसमें बच्चे की धड़कन देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में प्रेगनेंसी लग जाती है, उसको अगर हम जल्दी सोनोग्राफी कराते हैं, जल्दी टेस्ट कराते हैं तो बहुत जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और उसका सही मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जितना आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और सोनोग्राफी कराते हैं उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में पता चलता है और उसके लिए आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसलिए जल्दी डॉक्टर से मिलना, इन्वेस्टिगेशन कराना, उनको फॉलो करना और मेडिसिन लेना बहुत एसेंशियल है।
नॉर्मली 3 to 4 सोनोग्राफी होती है. इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे CBC, ब्लड शुगर, वायरल मार्कर, HIV, हेपेटाइटिस C, DDRL, यूरिन इन्फेक्शन के लिए टेस्ट होता है. तो ये सारे टेस्ट होते हैं और फिर 2 to 3 मंथ में इनमें से कुछ टेस्ट को रिपीट किया जाता है टू सी वो मेंटेन है कि और कम तो नहीं हो रहे हैं. और सोनोग्राफी में रेगुलरली ये देखा जाता है हर स्टेज में 5th मंथ की सोनोग्राफी में देखते हैं कि बच्चा वेल डेवलप्ड है कि नहीं. और बाद में देखा जाता है कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं, उसका वजन सही है, उसके चारों तरफ पानी ठीक है कि नहीं, और वो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के लिए उसको कैसे मोड ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करनी है. तो ये हो गया हमारा प्रेगनेंसी रूटीन, जिसमें हमें प्रेगनेंसी विजिट कराना है, वैक्सीनेशन कराना है, टिटनेस का वैक्सीनेशन कराना है, अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलना है, और एक हो गई हमारी प्री प्रेगनेंसी प्लान. अब जो एक कॉमन क्वेश्चन है फीमेल्स में कि हमें प्रेगनेंसी कौन से एज में करनी चाहिए, हम सेकेंड प्रेगनेंसी कब तक प्लान कर सकते हैं. तो अभी का समय है जिसमें शादी ही 25 प्लस के बाद हो रही है, 25-26, तो बी सजेस्ट एज अ डॉक्टर, क्योंकि 30 के बाद आपकी फर्टिलिटी भी कम होती है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. तो आप अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को 30 से पहले प्लान करें. तो अगर 30 से पहले आपके पास कोई मेजर रीजन नहीं है प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने का या प्रेगनेंसी नहीं प्लान करने का, तो यू शुड प्लान योर फर्स्ट प्रेगनेंसी बिफोर 30. उसके बाद आपकी सेकंड प्रेगनेंसी को भी आप कोशिश करेंगे 35 से पहले कर लें. लेकिन कुछ केसेस में उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाते. इससे आजकल हम 38, 39 और 40 के एज में भी प्रेगनेंसी देख रहे हैं. किसी को IVF और इनकी प्रेगनेंसी होती है, लेट प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी लगती नहीं है, इसलिए भी वो लेट हो जाते हैं. तो प्रेगनेंसी के एज का ध्यान रखें कि जिससे आप टाइमली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी. सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं पहले जैसी थी वैसे मैं नॉर्मल स्टेट में आ सकती हूँ कि नहीं डिलीवरी के बाद. ऑफ कोर्स आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप पहले जैसा शेप भी रिगेन कर सकते हैं, पहले जैसी एनर्जी भी रिगेन कर सकते हैं और मेंटली और फिजिकली फिट महसूस कर सकते हैं. इसके लिए आपको अगर पेरेंटिंग सेशन लेना है, क्योंकि बच्चे के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, कि वो आपको 24 आवर्स ऑन टू रहना पड़ता है, उसके लिए आपको हर 2 से 3 घंटे दूध पिलाना पड़ता है, आप बच्चे के लिए कंसर्न भी रहते हैं, आपको बहुत सारी तरह की सोशल एंजाइटी भी रहती है, उन सबको आप कैसे डील करें. और उसके बाद आपको अपना भी ध्यान रखना होता है कि आप अच्छा खाना खाएं, कितनी बार खाना खाएं, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, जिससे आपको कमर में दर्द ना हो, आपको बॉडी एक ना हो, और आपको जो आयरन और कैल्शियम है जो आप प्रेगनेंसी में ले रहे थे, उस आयरन और कैल्शियम को मिनिमम 3 महीने खाना ही है डिलीवरी के बाद, क्योंकि जो भी ब्लड लॉस आपका हुआ है, जो भी ब्लड चला गया आपकी बॉडी से, वो ब्लड लॉस आपका कंपनसेट होगा जब आप आयरन की टैबलेट लेंगे. और कैल्शियम, जो भी दूध और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं अपने कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए, वो सारा कैल्शियम आप जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो बच्चे में चला जाता है. तो इसलिए हमें अपने कैल्शियम को सप्लीमेंट करना होता है. इसलिए रेगुलर कैल्शियम, जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, कैल्शियम लेना. एक बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि खाने पीने में पानी नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी लेने से पेट फूल जाता है. सेकंड की सिर्फ दलिया खिचड़ी 1 महीने तक खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ और खाते हैं तो वो मिल्क के थ्रू बच्चे में चला जाएगा और बच्चे को नुकसान करेगा. इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है. आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पहले ही दिन से मदर को सादा ही खाना खिलाते हैं. सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, दही, रोटी, सब्जी, सब कुछ आप खा सकते हैं जैसे ही आपकी बॉडी फिट हो. और आप खाएं, क्योंकि जितना अच्छा आप खाएंगे उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, और उस न्यूट्रिशन से जो बच्चे के लिए दूध बनेगा वो बहुत ही हेल्दी होगा और जिससे बच्चा बहुत फिट रहेगा. तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर खाना खा रहे, क्योंकि एक पर्टिकुलर खाना खाने से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन ही मिल सकता है. अगर आपको प्रॉपर होल न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको बाकी सारी चीजें भी खानी पड़ेगी. तो आपके न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है, आपको रेगुलर खाना है, अच्छे से नींद लेनी है, और हेल्प लेने में हेजिटेट ना करें. अगर आपको लगता है कि बच्चे को संभालने में आपको अकेले दिक्कत आ रही है, तो आपके घर में जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे हेल्प लें, जिससे आप भी थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, थोड़ा सा प्रॉपर सोए और अच्छा महसूस करते हैं. मैम, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मैं एड्रेस करूं? जी, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी, यदि कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेरी कुछ आपके माइंड में है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं. आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट भी कर सकते हैं. मैम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती थी कि ऐसे मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ऑपरेशन से हैं, और मेरी छोटी बेटी 4.5 साल की है.
तो मैम एक्चुअली मैं फिजिकली वर्कआउट करती हूँ, मतलब जिम वगैरह जाती हूँ। तो जो सप्लीमेंट्स लेती हूँ मैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि अगर रेगुलर सप्लीमेंट्स लेती हूँ तो वो कहीं ना कहीं लीवर को डैमेज या किडनी को डैमेज कर सकता है? देखिए, कोई भी सप्लीमेंट अपने मन से नहीं लेना है ना, जो भी है वो डॉक्टर जी की जी। कंसल्टेशन और डॉक्टर की सुपरविजन में लेना है। अगर आप नहीं मैम, सप्लीमेंट्स मतलब ये कैल्शियम और मल्टीविटामिन और आयरन की ही टैबलेट लेती हूँ और साथ में प्रोटीन लेती हूँ। वो सप्लीमेंट भी आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है। अगर आप कैल्शियम इंटेक का बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है विटामिन डी एक्सेस हो जाए। कई लोग विटामिन B12 जो सप्लीमेंट मल्टीविटामिन लेते हैं उनके विटामिन B12 का एक्सेस हो जाता है, क्योंकि वो कभी टेस्ट तो कराते ही नहीं है ना। जी जी कोई जी भी मैम। बॉडी अपनी बॉडी में हर एक चीज ऑप्टिमम लेवल पे, अगर जी आप उस ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी, है ना। नेचुरल ओके चीजें जो ओके। हम खाते हैं वो बॉडी से डाइजेस्ट होकर एक्सक्रीट हो जाती है, लेकिन जो भी मेडिसिन आप खाते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल है, कभी वो जी प्रिजर्वेटिव है और वो है। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका एक जी डोज है, एक ड्यूरेशन है। वो ऐसा नहीं है जी कि मैं जी कभी भी ले सकती हूँ और कितने समय के लिए ले सकती हूँ। अगर आप कम समय के लिए ले रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक बहुत अपने मन से ले रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड। नहीं मैम, एक्चुअली मैं मतलब जैसे ट्रेनर सजेस्ट करते हैं ना डाइट के अकॉर्डिंगली, तो जैसे मैं 3 महीने रेगुलर लेती हूँ, फिर 1 महीने का गैप कर लेती हूँ बीच में, फिर 3 महीने रेगुलर लेती हूँ, फिर 1 महीने का गैप करती हूँ। देखो, वो एक बार देख के आपकी बॉडी, वैसे तो आप जिस तरह से बता रहे हैं अगर ट्रेनर आपका एक्सपर्ट है, उसको नॉलेज है, तो हो जी सकता है आपको नुकसान नहीं करे, लेकिन फिर भी आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं उसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ओके ठीक है मैम, मैम थैंक यू। ऑडियंस में एक इंदिरा मौर्य जी हैं, उन्होंने टेक्स्ट किया है कि अगर आफ्टर 35, अगर पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 35 हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, आजकल हम बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी देख रहे हैं जो 35 टू 40 की बेस पे है ना। जो भी अपनी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं उसके कारण ये सिनेरियो हो गया है। जी सेकंड मैरिज भी होती है, कई लोगों की प्रेगनेंसी नहीं लगती है, कई अपनी प्रेगनेंसी किसी फाइनेंशियल रीजन और कैरियर रीजन के कारण भी डिले करते हैं। तो देयर आर मेनी रीजन जिसके कारण 45 के बाद लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करनी पड़ रही है। 35 के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट इट इज नॉट सर्टेन, क्योंकि आपकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। अब वो कितनी हद तक कम हुई है, जो आपकी ओवरी की एज है वो आपकी एज नहीं है। कोई 35 ईयर्स का है उसकी ओवरी की एज हो सकती है 20 साल की, कोई 35 ईयर का है उसकी ओवरी की एज होती है 45 ईयर्स की। तो आपकी ओवरी की एज अगर अच्छी है, कम है, तो आप जल्दी कंसीव करेंगे, और जितनी अच्छी ओवरी है, जितने अच्छे एग है, उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी और उससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कम है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको हेल्थ रिलेटेड हो जाते हैं कि आप जैसे 35 क्रॉस करते हैं आपका बीपी बढ़ना शुरू हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है, और ये सारे की सारी चीजें आपकी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का रिस्क, आपको समय से पहले डिलीवरी का रिस्क, बच्चे में किसी तरह की अनोमली, अगर आपके एजिंग होगी तो एजिंग में आपकी जो डीएनए है वो भी एजिंग होगी और उसके कारण उसका जो फॉर्मेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं एनॉमली भी हो सकती है। तो 35 के बाद बच्चे में जन्मजात विकृति के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सबके बावजूद, है ना, अगर हम 100 केसेस देखते हैं तो ऐसा नहीं कि 100 को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। 80 लोग जो है उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्थी है, नेचुरल है, सब कुछ ठीक है, और 20 लोग ऐसे हैं जिनमें 15 लोगों को हमें इंटेंसिव ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है जिसके बाद वो सही हो रहे हैं, और 5 लोग ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण आपको जिंदगी के साथ करना है, तो आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को फॉलो करें, जो भी आपको मेडिसिन और इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करो, तो आपकी प्रेगनेंसी नेचुरली बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो सकती है। जी कोई और हैंड रेस किया हुआ है किसी ने? अनु अनु मैम 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 आपका इको हो रहा है, कुछ बंद कीजिए आप। आपके पास में किसी और ने लॉगिन किया हुआ है, आप उनकी वॉइस बिल्कुल बंद करा दीजिए, स्पीकर की वॉइस भी बंद कराइए, वो रिपीट हो रहा है मैम। या फिर आप टेक्स्ट कर दीजिए मैम, समझ में नहीं आ रहा है। तब तक किसी और को पूछना है, हैंड रेस किया हुआ है, पूछ सकते हैं आप।
आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी, वॉइस क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, जब तक मैम ऑडियंस से कोई पूछता है तब तक मैं मैम अब ऑडियो क्लियर हो रही है? हाँ जी, हाँ मैम पूछिए। अब क्लियर हो रही है? जी जी जी। हाँ मैम, ये गीता जी है, इन्हें कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैम के साथ क्वेरी है, तो मैम आप एक बार सुन लीजिए, मैं इनको माइक लगा। हाँ नहीं आ रहा है। पूछिए, प्रश्न पूछिए। सुनाई दिया है क्योंकि नहीं आ रहा। पीरियड्स नहीं आ रहे, यही पूछ रहे हैं आप? मैम ये पूछ रही है कि इनका पीरियड नहीं आ रहा, पेट में इनके सूजन हो रही है। देखिए, अगर कोई कहता है पीरियड नहीं आ रहा तो सबसे पहली चीज है कि उसकी प्रेगनेंसी तो नहीं है, पीरियड कितने समय से नहीं आ रहा है, सोनोग्राफ देखिए, प्रश्न आप जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा उचित तो यही होगा कि आप सबसे पहले जाएं और डॉक्टर से मिलें और अपना पहले चेकअप कराएं। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरीके का नहीं है कि हम प्रॉब्लम का समाधान यहाँ से कर देंगे। ये सिर्फ जो हमारी मिथ्स हैं या हमारे मन में जो क्वेरी है या भ्रम हम जिसको बोलते हैं, वो डाउट्स क्लियर करने के लिए प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो आप किसी से बिना पूछे डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से मिलें। कोई और यदि प्रश्न है किसी को? मैम एक क्वेरी है, मेरी पर्सनली है। यदि ऐसा होता है कि मैम जैसे अनमैरिड कोई लड़की है और उसको यदि सिस्ट हो जाती है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पीरियड्स टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज क्या कंसीव में प्रॉब्लम हो सकती है यदि सिस्ट है तो? देखिए, सिस्ट का भी बहुत तरह की सिस्ट होती है। जैसे आजकल एक पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, उसको भी लोग बोलते हैं कि हमारे सिस्ट है। तो सिस्ट में ये कितने साइज की है, कितने बड़ी सिस्ट है, किस टाइप की सिस्ट है ना? जी। और हर सिस्ट का इलाज होता है। अगर सिस्ट के साथ कोई और एसोसिएटेड कंप्लेंट नहीं है तो ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम जनरली नहीं करती है। जी। मैम जैसे रेगुलर चेकअप हो रहा है, साइज तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे मेजर इशू भी नहीं है, बस है ही 8-10 साल से सेम साइज में ही है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट भी नहीं डॉक्टर देते हैं। कि अगर 5 सेंटीमीटर से कम का है ना, तो फिर मेडिसिन और ये सब करना पड़ेगा। और 3-4 सेंटीमीटर की अगर सिस्ट पड़ी है तो कोई बात नहीं, चिकन प्लान। ओके, थैंक यू वंस अगेन। सो अगर अभी किसी की क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो हम अब मैम से इजाज़त लेना चाहेंगे। मैम ने काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट समय हमारे साथ में दिया है, अपने विचार हमारे साथ में साझा किए हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके और अपनी बातें साझा करने में। जी मैम, हम आग्रह करेंगे भविष्य में फिर से हम स्त्री संबंधी ठीक है, एक क्वेश्चन और आया है एक मिनट में पूछ लेती हूँ। पहली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ है और दूसरी प्रेगनेंसी में स्वस्थ बच्चे होने के बावजूद 3 माह में शिशु की अकारण मृत्यु हो गई। क्या ये मतलब गर्भधारण से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जो आपके शिशु की 3 माह में मृत्यु हुई है, सबसे पहले उसका कारण जानना, क्योंकि अकारण है तो आपको कारण नहीं पता। उस कारण से हम पता लगा सकेंगे कि ये क्यों है, इसमें मदर का कोई रोल है कि नहीं, है ना? किसी को इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, उसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उसमें ना तो आपकी प्रेगनेंसी का रोल है ना तो आपकी मदर का रोल है, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है। कि किसी को ऐसी कोई डिजीज है जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकती है, तब तो मदर का कोई रोल है उसमें कि भाई वो कुछ हम करें जिससे नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये जानना बहुत जरूरी कि अगर किसी के 1 अबॉर्शन हुआ है, 2 अबॉर्शन हुआ है, 3 अबॉर्शन है, इसका नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है ना? कुछ टेस्ट होते हैं जो हम जेनेटिक। मैम वो बता रही है कि 3-4 घंटे बुखार आया था, बुखार ही रीजन बताया है। देखिए, बुखार आया तो फिर वो बुखार को तो वो बाहर इतने सारे
इन्फेक्शन होते हैं। अब वो इन्फेक्शन के कारण अगर बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसमें फिर प्रेगनेंसी का कोई रीजन नहीं है। यस, ठीक है मैम। अभी हम इजाज़त लेना चाहेंगे, थोड़ा समय की हमारे पास साथ पाबंदी है, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि भविष्य में फिर से आप हमारे साथ में जुड़ें और अन्य इसी तरीके से जो लेडीज़ की प्रॉब्लम है हम उन पर चर्चा करते रहें, अवेयरनेस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एक बार फिर से। धन्यवाद आप जी। So now we are moving for our next session, and I would like to invite our next speaker, Miss Shweta Dubey ji. जी, श्वेता मैम से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हमारी चर्चा का विषय है वो जनरली ऐसा नहीं है कि मैम को कोई स्पीच देनी है। यहाँ पे हम कुछ मातृत्व से संबंधित जो भ्रम होते हैं, जो मिथक होते हैं, हम जो तथ्य हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे, और उस